So, a very good morning, my dear students. How are you? Oh, I know you all are all right. Hmm? Okay. Now here in this previous lesson, means previous session, we have learned that whole introduction part regarding to our fifth chapter, that is separation of substances, and I hope that you have cleared all these basic terms. Okay. So now here let's start to our main point in that lesson. That is, we will start from the activity 1. Now here in that lesson you have given some activities to follow. Now for what is the purpose of that activity? This activity is not for only your reading, it's for your doing also. Means you have to follow that each and every activity, and you have to do that by your own, so that if you do it by yourself you will understand it perfectly. Okay, so if possible, you please do it. Okay, it's my order, we can say, it's my suggestion. Hmm? So first of all we will try to know what is that activity. Now in column number 1 of table 5.1, now in the next page you will find that, okay, are given a few processes of separation, the purpose of separation and the way separated components are used in mention in column number 2 and 3 respectively. However, the information given in column number 2 and 3 is jumbled up. Can you match it? Now here you have given one page, see here. Now here you have given why we do separate substances. Now why we do that substance, means why we separate that substances. Do you think that why we do? Okay, see, first of all, see first example, separation process means separate stones from rice. Suppose you have some rice here, and in that rice if you find that some stones are get mixed. Now here, why we separate that stone from that rice? Hmm? Do you think that means purpose for which we do the separation? Here is a one purpose that you have given, that really why we are separating that stones from our rice, to separate two different but useful components. Now here what we want, we just want rice to cook. Do you cook some stones also, or do you like some stones to eat? Obviously no one will like to eat stone in place of instead of rice. Means what is our useful substance? Only rice. And what is the unuseful substance? It is stone. Means we don't want stone, we just want the rice only. Okay, so in that, as we want rice here, so what we will do, we will separate that two components, and here but useful components, means here we will use that useful components, and if we will throw that stone away. Okay, so what do we do with the separated components? Now what we do with that separated components, we throw away the solid component. Means now here what we will do, we will throw away that stone, whatever that stone that you are finding here, we will throw away that stone. Okay students, so have you understand that first one? Now what about the second thing, churning milk to obtain butter? Now why we churn that milk, already I told you in the previous here, this is nothing but the churning process. Okay, means process of churning where we separated that butter. Hmm? So same thing happened here. Here they are asking about churning milk to obtain butter. Means what we are doing here with the milk, for obtaining butter we are churning that milk with that rounded like a substances below, means having straight upper one, and that what we have found in that figure, in previous figure. So what is the purpose of that? To remove non-useful components. We want, we means what we are doing, for what we are doing that churning milk to obtain butter, to remove that non-useful components, whatever that non-useful components, no, when you churn that, in upper side you will find that non-useful substance. So that non-useful substance you will throw it away if you don't want it. Okay, if there is a no use to you, you will obviously throw it away. So means to remove that non-useful components, we are just churning that milk to obtain the butter. And here why do we do with the separated components? What do we do with the separated components? हम separate किए components को क्या करते हैं, फिर वो impurities जो है उसे हम throw कर देते हैं. ठीक है, जो भी impurities है उसे हम फेंक देते हैं. ठीक है. So next here,
separate tea leaves. Now here in previous pic we have find out, in the previous image we have find out how we are separate that tea from tea leaves. Okay, so what is the purpose of separating? To remove impurities or harmful components. Sometimes when you are making tea, you will find some harmful components also, so that easily you can with the help of strainer you can easily separate that all impurities which is present in the tea by using the by using that strainer. Okay, so when you will pour the tea in that, so that all unwanted impurities or tea leaves will settle down on the strainer, and only pure tea will be fall down at the cup. Okay, एंड हियर व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स? हम सेपरेट किए कंपोनेंट्स के साथ क्या करते हैं फिर? वो जो सेपरेट किए कंपोनेंट्स है, जैसे कि ये स्ट्रेनर में हमें जो छाननी है उसको हम क्या बोलते हैं, जो स्ट्रेनर है उसमें अगर हमें टी लीव्स है जो हमने इम्प्योरिटीज़ बोल के इसको सेपरेट किया था, तो ये जो टी लीव्स है उससे हमने स्ट्रेनर का यूज़ किए करके सेपरेट किया है। अभी इसका हम यूज़ क्या है? कुछ भी यूज़ नहीं है, तो ऑब्वियसली हम इसको फेंक देंगे। ठीक है, ये जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ है टी लीव्स, जैसे कि इसका अभी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमने टी बना ली उसको यूज़ करके, हमारी जो टी है वो बन गई है, अभी चाय जो है वो बन गई। तो ये चाय की जो पत्ती है जो एक बार हमने मतलब बॉईल की है, उसका भी कोई यूज़ नहीं, इसलिए हम उसको थ्रो अवे कर देंगे, इसको फेंक देंगे हम। ठीक है, समझ में आया अभी कि वाई डू वी सेपरेट द सब्सटेंसेस? ओके, now here purposes with its purpose and the way separated components are used. Now here what we have learned just right now. Okay, so we see that before we use a substance we need to separate a harmful or non-useful substances, okay, that may be mixed with it. Now what is the use of that? We are just separating the useful substances from the or non-useful substances. Okay, if we want, so sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. The substance to be separated may be particles of different sizes of materials. This may be in any three states of matters, that is solid, liquid और gas. ये जो अभी impurities हम जो भी है थिंग्स, ठीक है, तो वो थिंग्स हम इम्प्योरिटीज से सेपरेट क्यों कर रहे हैं, या फिर कर रहे हैं तो कैसे टाइप में होंगे? जो सॉलिड है, जो हमारी थिंग है, जो हम जैसे कि हम राइस कंसिडर करेंगे, या फिर टी कंसिडर करेंगे, या फिर पोहा कंसिडर करेंगे, या फिर व्हीट राइस, जो भी है ग्रेन से, कौन से भी पल्सेस से जो भी है हम सेपरेट कर रहे हैं, तो वो कौन से स्टेट में होंगे? वो थ्री स्टेट ऑफ मैटर में होंगे। आइदर वो सॉलिड में होंगे, या फिर लिक्विड में होंगे, या फिर गैस में होंगे। उस वजह से मतलब ये तीनों चीज़ों को हम उसके इम्प्योरिटीज से सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोसेसेस और मेथड्स। तो वो डिफरेंट प्रोसेसेस या फिर मेथड्स कौन से हैं? सो हियर यू हैव गिवन दैट मेथड्स ऑफ सेपरेशन. सो देयर आर मेनी सेपरेशंस methods of separations. With the help of that process, that easily you can separate that impurities from that particular solids, from that particular liquids, or from that particular gas. Okay students, so here फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मेथड दी है वो हैंड पिकिंग है। मैंने कीवर्ड्स में आपको बताया था कि व्हाट इज़ हैंड पिकिंग। जो यहाँ पे आपको ये इंसान दिखाई दे रहा है, दिस मैन is now separating whatever the maybe there is a grain. So ये जो ग्रेन है इसको हम वीट कंसिडर करेंगे, या फिर राइस, कुछ भी आप कंसिडर करो, ग्रेन है तो ठीक है। उस ग्रेन में से ये स्टोन्स यहाँ पे देख रहे हो आप, ये स्टोन है, उसने स्टोन थ्रो किए हैं। जो वीट है, सपोज हमने इसको ग्रेन को वीट कंसिडर किया, तो उस ग्रेन में, उस वीट में हमें स्टोन नहीं चाहिए। हम मतलब चपाती खाते हैं, ठीक है, ब्रेड, तो रोटी बनाते टाइम हम रोटी वीट के फ्लोर की रोटी बनाएंगे, स्टोन की फ्लोर की तो रोटी नहीं बनाएंगे ना। वो एक तो ब्लैक हो जाएंगी, और जब हम उसको चेव करेंगे तो वो टेस्टलेस हो जाएंगी, ठीक है, और हम खा नहीं पाएंगे, और ऑब्वियसली हमारा पेट बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें वो इम्प्योरिटीज़ जो है, स्टोन इम्प्योरिटीज़, हमें वो ग्रेन से सेपरेट करनी है यहाँ पे। तो वो जो मटेरियल है, जैसे कि ग्रेन है, तो हम इजीली हैंड से उसको, वो जो स्टोन है वो लार्ज मटेरियल है, हमें दिखता है वो स्टोन। सो जो स्टोन हमें दिखेंगे वो हमारे नेकेड आइज से, तो हम उसको सेपरेट कर देंगे वीट से, ठीक है। तो जनरली जो हाथ से हम उस स्टोन को फेंक देते हैं
जो पर्टिकुलर ग्रेन में से, तो उसको हैंड पिकिंग कहेंगे। उस मेथड को हम कौन सी मेथड कहेंगे? हैंड पिकिंग, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे एक्टिविटी भी आपको बोली है कि आपको कैसा करना है उसको। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेस्ड फ्रॉम द शॉप ऑफ द क्लासरूम, नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ पेपर, डू यू फाइंड दैट ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, आर देयर पीसेस ऑफ द स्टोन, husk, broken grain, particles and any of this in it. Now remove with your hands and pieces of stones, husk and other grains from it. जैसे कि आपको यहाँ पे कहा है कि 2-4 चीज़ें ले लो, उसकी मिक्सचर कर लो और उसमें से हस्क मतलब जो अनवांटेड पार्टिकल्स है, ठीक है, जो आप फूंक मारने से आपको उसको मिटा सकते हो। जैसे कि आप घर में आपकी मम्मा करती होंगी ना, कभी फूंक मार के कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस है जो हम उसको सेपरेट करते हैं, जैसे कि पोहा है और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो मम्मा आपकी यूज़ करती है और उसको फूंक मार के उसकी इम्प्योरिटीज़ गायब कर देती है, ठीक है। मतलब वहाँ पे आपको हैंड पिकिंग की ज़रूरत नहीं। तो जो उसको फूंक मार के जो हम निकाल सकते हैं उसको हस्क कहेंगे। हस्क है, जो स्टोन है वो आपको हस्क से नहीं निकलेंगे, तो मतलब फूंक से नहीं निकलेंगे, तो आपको हैंड पिकिंग से निकालना होगा उसको, और ग्रेन आपकी जो है वो सेपरेट करनी होगी, ठीक है। तो इस सभी मेथड को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को, सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज जो हम उसको कर रहे हैं, उसको हैंड पिकिंग कहेंगे। सो द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग solid can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stones and husk from the wheat, rice और pulses। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था, डर्ट कौन से भी, मतलब पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम द व्हीट, राइस और पल्सेस। जो भी आपकी ग्रेन है जैसे कि व्हीट, राइस और या फिर पल्सेस हम कंसिडर करेंगे, तो उसमें बहुत सारी डर्ट होती है, कभी कभी स्टोन भी होते हैं, हस्क भी होते हैं। सो ये सारे हम हैंड से हमारे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि स्लाइटली लार्जर पार्टिकल है, स्लाइटली लार्जर पार्टिकल है, ये लार्जर पार्टिकल है जो हमें दिखते हैं हमारी आंखों से, इसलिए हम उसको हाथ से निकाल सकते हैं। जो हमें नहीं दिखेंगे फिर हम उसको अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें मेथड सीखने हैं अलग अलग, नहीं तो हम एक ही मेथड सीख के साइड में हो जाते हैं। जैसे कि हैंड पिकिंग है, अगर ये एक ही वे होता इम्प्योरिटीज रिमूव करने का, तो हम एक ही सीखते, पर एक ही से काम नहीं होगा, मतलब सिर्फ वन मेथड से काम नहीं होगा यहाँ पे। डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग और एंड द impurities which is mixed in that particular thing, we have different methods, so that's why we are learning that method one by one here. So have you understood that how we are using that hand picking method? By that only, the quantity of such impurities is usually not very large, so in such a situations we find that hand picking is convenient method for separating substances। जैसे कि हमें मालूम है बहुत यहाँ पे जो impurities है वो थोड़ी लार्ज होती है, मतलब वेरी लार्ज होती है, जैसे कि स्टोन हम देख सकते हैं हमारे आंखों से, तो इजीली हम उसको हमारे हैंड से सेपरेट करेंगे, ठीक है। इसलिए हैंड पिकिंग हमें यहाँ पे एक कन्वीनियंट मतलब इजी मेथड लगती है सेपरेटिंग सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हैव यू क्लियर्ड विद दैट हैंड पिकिंग मेथड? So I hope that you understood it in very detail. Now see the next process, there is a threshing. Threshing मतलब मालूम है आपको threshing क्या है? इससे पहले आपने वर्ड सुना होगा threshing, ओके। सो सी व्हाट इज़ थ्रेशिंग। जनरली हम फार्मर्स ये थ्रेशिंग यूज़ करते हैं क्योंकि वहीं पे ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। सो अभी आप मतलब जो फार्मर्स के बच्चे हैं वो जनरली इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, पर जो नहीं है वो तो उससे ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमेजेस भी है हमको, और जनरली आप पूछ भी सकते हैं या फिर आपके फार्म में जब ये प्रोसेस चालू होंगी तब जाके देख भी सकते हो लाइव, ठीक है। और ज़रूर देखना आप, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो थ्रेशिंग मतलब क्या? यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक लेइंग इन द फील्ड्स। मतलब आपने बहुत बार देखा होगा जब व्हीट हम कहते हैं ना कि अभी व्हीट हमें निकालना है या फिर राइस निकालना है, तो जब आपको उसे निकालना होता है, मतलब सेपरेट करना होता है व्हीट को उस स्टाक से, या फिर फार्म में जो उसके व्हीट के जो पेड़ या फिर ट्रीज होते छोटे छोटे, ओके, कहते हैं ना हम उसको, तो वो जो सेपरेट करते हैं तो उससे पहले हम उसको निकालते हैं जड़ से, ठीक है, और फिर एक उसकी पैडी बना के रखते हैं या फिर बंडल बना के रखते हैं, ठीक है, पैडी स्टॉक्स की। सो बंडल बना के रखते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो जो बंडल्स बनाते हैं उसको हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, ओके, उसको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट मतलब क्या? अभी ये हार्वेस्टिंग क्या है, ठीक है। तो हार्वेस्ट किया जाता है मतलब क्या?
जनरली ये जो फार्मर देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, ये फार्मर क्या कर रहा है, इसके हाथ में यहाँ पे बंडल्स है वीट के जो बंडल्स है, ठीक है। तो ये बंडल्स को क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो आपको नीचे साइड में दिखाई दे रहा है, इसको हम रेक्टेंगल पत्थर कहेंगे या फिर कौन सी भी ऐसी चीज़ है, स्ट्रॉन्ग चीज़, जिसके ऊपर ये बंडल्स ऑफ वीट ऐसे मार रहा है, ठीक है। या फिर उसको कोई ऐसे डंडे से या फिर कौन सी चीज़ से मारेगा वो, किस लिए ऐसे करेगा, उसको मारेगा क्यों उस बंडल्स ऑफ वीट को, क्योंकि उसको उस बंडल ऑफ वीट से क्या करना है, हस्क बाजू में निकाल के उससे अपनी जो यूज़फुल सब्सटेंस है, जो वीट हम खाते हैं, उसको सेपरेट करना है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहेंगे। तो देखो आप, थ्रेशिंग जनरली क्या है हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। स्टॉक्स आर ड्राइड इन लिसन हियर। सो जनरली जो ये फार्मर है, अभी वो क्या करेगा, थ्रेशिंग मतलब वो क्या करने वाला है, देखो यहाँ पे, ठीक है। सो स्टाक्स आर ड्राइड इन अ सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। पहली बार तो वो जो स्टाक्स है, मतलब वो जो बंडल्स है वीट के, उसने जो निकाले वाले बंडल्स है, उसको क्या करेगा, देखो सबसे पहले तो वो स्टाक्स को क्या करेगा, ड्राइड करेगा इन द सन, मीन्स वो सन में उसको बास्क हमें बोलते हैं ना, धूप में उसको सुखाएगा, मतलब बंडल्स बना के उसको एक दिन के लिए या फिर थोड़ी देर के लिए, जब तक उसको रखना होगा वो ड्राइड होने तक, वहाँ तक वो सन में उसको वो बंडल्स ऑफ वीट को रखेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, ईच स्टैक्स हैज़ अ मेनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। जैसे कि हमें पता है हर एक स्टैक्स को बहुत सारे सीड्स होते हैं, सीड्स मतलब यहाँ पे हम वीट कंसिडर करेंगे हमारी, ठीक है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन द हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ द स्टॉक्स लेइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट द ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। ना यहाँ पे अभी क्वेश्चन है कि वहाँ पे तो मतलब एक अगर हम कंसिडर करेंगे स्टॉक्स, तो उस पर हंड्रेड्स ऑफ वीट्स के सीड्स होंगे, ठीक है। तो अभी उसको वो सेपरेट कैसे करेगा, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट ना, क्योंकि हमें स्टार्क्स नहीं चाहिए, स्टार्क्स से इम्प्योरिटीज़ है, हमें क्या चाहिए, हमारे जो ग्रेन है, ठीक है, हमारी जो ग्रेन से मतलब वीट है वो चाहिए हमें, ठीक है। सो वन में प्लक मैंगोज और गुआवास फ्रॉम द ट्रीज। कोई अगर हम मतलब एक क्या करेगा, कोई इंसान है तो वो मैंगो और गुआवास ट्रीज से निकाल सकता है, क्योंकि वो बड़े क्वांटिटी है ना, मैंगो बड़ा है, हाथ से हम इजीली उसको कैच कर सकते हैं, गुआवा भी बड़ा है, इजीली हम उसको पहचानेंगे या फिर दिखेगा हमें डायरेक्टली, क्योंकि वो लार्जर साइज में है। पर ग्रेन का क्या, क्योंकि बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर। जैसे कि हमें पता है कि ग्रेन सीड्स बहुत छोटे होते हैं मैंगो और गुआवास के कंपैरिजन में। सो प्लकिंग देम फ्रॉम द स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली जैसे कि हम गुआवाज और मैंगो प्लक कर सकते हैं ट्रीज से, पर स्टाक्स मतलब वीट को हम कैसे प्लक कर सकते हैं, वो तो इतने बड़े साइज में नहीं होंगे ना, और एक दो या फिर चार पांच नहीं है ना, बहुत हंड्रेड्स है, मतलब हंड्रेड्स के ऊपर भी होंगे, ठीक है। तो इतने अगर हम हैंड पिकिंग से यूज़ करेंगे तो just see, you will die at one stage, okay, means you will very tired and you will just zapped by that thing, you will say that nothing, I know I'm fed up with this thing, okay, like that reaction will give, and you will just leave that work, okay। So but here how does one separate green seeds from that stalk, but यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोई अगर सेपरेट करेगा तो कैसे करना चाहिए। so the process that is used to separate green from the stalks, it is called threshing। सो जो भी प्रोसेस है जिससे हम ग्रेन को स्टाक से सेपरेट करते हैं, इन दिस प्रोसेस द स्टाक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन्स सीड्स इन फिगर 5.4। नाउ हियर यू आर सीइंग दैट फार्मर इज नाउ बीटिंग टू फ्री द ग्रेन सीड्स। जो भी यहाँ पे वो उसने बंडल्स ऑफ स्टाक्स लिए हैं उसको यहाँ पे बीट कर रहा है मतलब मार रहा है उसको, क्योंकि मारने से वो जो वीट है या फिर सीड्स ऑफ वीट है वो उस स्टाक से क्या होंगी, उसको कंटिन्यूसली बीट करने की वजह से वो वाइब्रेट होंगी और वाइब्रेट होके वो निकल जाएंगी, स्टॉक से अलग हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए इस तरह से हमें हमारा
जो यूज़फुल सब्सटेंस है ग्रेन वो मिल जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेपरेट डाउन हो सकती हैं, ठीक है। और इसको हम वो थ्रेशिंग सिर्फ बीटिंग करके ही नहीं बल्कि हम उसको बुलॉक्स की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। मीन्स थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। जैसे कि बुलॉक्स है एनिमल का यूज़ करके भी हम उसको ये निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम उसको मशीन से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आज की हम टेक्नोलॉजी में देखें तो कोई भी फार्मर इस तरह की चीज़ नहीं करेगा या इस तरह की प्रोसेस नहीं करेगा। ये जनरली अभी ओल्ड प्रोसेस हो गई है, ठीक है। पर कहीं जो जो रूरल विलेजेस है या फिर रूरल पीपल है वो आज भी जो जो मशीन से नहीं निकाल सकते ये सब या फिर उतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो इजीली आज भी ये प्रोसेस कंटिन्यूली कर रहे हैं, ठीक है। पर जो जिस जिस मतलब स्टेज में आज हम हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी के स्टेज में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, मशीन्स का इन्वेंशन है, तो हम आज क्या कर रहे हैं मशीन्स का हेल्प करके या फिर मशीन्स का यूज़ करके ये हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या ये थ्रेशिंग्स की प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आज मशीन की वजह से हम अपने जो वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन है जैसे कि थोड़े ग्रेन हो गए तो सेपरेट कर पाएंगे हाथ से, ठीक है। पर बहुत सारे मतलब हमारे पास तो एक एकड़ खेती नहीं होगी ना, तो अगर मतलब बहुत ज़्यादा एकड़ खेती होंगी और उस सारे खेती में मतलब वो पूरी खेती में हमने ये जो वीट है या फिर वीट के स्टाक से अगर सेपरेट किए हैं या फिर लगाए हैं तो उसको सेपरेट करना हैंड से कितना इम्पॉसिबल होगा, होगा कि नहीं? यस ऑब्वियसली होगा, क्योंकि पर तब हम वहाँ पे हैंड से करेंगे तो हमारी मतलब हमारी एनर्जी ही नहीं टेकेंगी, इसलिए हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क होगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली अब तब हम वहाँ पे मशीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो कि आज हम कर रहे हैं डेली। आप अगर देखोगे खेत में जाके तो आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें खुद आपके आंखों से सीखने को मिलेगी, ठीक है, और वो भी लाइव। सो हैव यू अंडरस्टूड दैट प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग? सो थ्रेशिंग ने हमें क्या सीखा? द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट grains from the stalks, so it is called as a threshing. So have you clear with this one also? So before of that we have learned hand picking, now we have learned threshing. Now we are going to see that what is winnowing. So winnowing मतलब क्या है? winnowing किसको कहते हैं? जनरली आपको पता है विनोइंग मतलब क्या? जैसे कि आपकी मम्मी ये भी करती होंगी काम, है ना। जैसे कि घर पे ये जो है खेत में है या फिर बहुत सारा ग्रेन सेपरेट करने के लिए ग्रेन से हस्क या फिर अनवांटेड स्टोन से वो सेपरेट करने के लिए ये कर रही है। पर अगर हम देखेंगे कि घर पे अपनी मम्मी कर रही होगी तो आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा जो ये लेडीज़ यहाँ पे कर रही है। तो एग्जैक्टली विनोइंग क्या है, ठीक है। आपको एक एक्टिविटी दी है विनोइंग की, आप कैसे कर सकते हो देखो। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद द सैंड डस्ट मीन सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। ओके, आपको 2-3 चीज़ों का ये जो दिए वाला है उसका मिक्सचर लेना है एंड कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और न्यूज़पेपर। उस मिक्सचर को आपको एक कोई छोटी प्लेट में या फिर बड़ी प्लेट में लेना है या फिर आप प्लेट नहीं है तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हो, एक कोई भी पेपर पे ले सकते हो, ठीक है। एंड लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, इस मिक्सचर को ध्यान से देखो। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली? आप इजीली उसको सेपरेट कर सकते हो? दो जो डिफरेंट दो कंपोनेंट्स है वो मिक्सड किए हैं एक दूसरे में, उसको आप इजीली कर सकते हो क्या? आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर? आपको लगता है कि उसके वो जो कंपोनेंट्स है उसके साइजेस भी सेम होंगे? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग? और आपको ऐसे भी लगता है क्या कि आप उसको हैंड पिकिंग का यूज़ करके निकाल सकते हो या फिर सेपरेट कर सकते हो इम्प्योरिटीज़ को? देखेंगे। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। अभी इसी मिक्सचर को आप अगर हैंड पिकिंग से नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे हमको इसीलिए विनोइंग सीखनी होगी। जिसको आप हैंड पिकिंग से नहीं कर सकते हो या फिर थ्रेशिंग से नहीं कर सकते हो तो उसको आप विनोइंग से कर सकते हो या फिर करके देख सकते हो, आपको पॉसिबल होगा, मतलब आपको रिजल्ट अच्छे से मिलेगा। तो कैसे? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक योर मिक्सचर
टू एन ओपन ग्राउंड। सबसे पहले आप खुले मैदान में जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको एयर का यूज़ करना है। विनोइंग मतलब जनरली ये विनोइंग एयर से की जाती है, विद द हेल्प ऑफ एयर जो प्रोसेस की जाती है उसको हम विनोइंग कहते हैं। इसलिए हमें एयर में जाना होगा। एयर में जाना होगा मतलब क्या, खुले मैदान में, ओपन ग्राउंड में जाना होगा। एंड स्टैंड ऑन द रेज प्लेटफॉर्म। रेज प्लेटफॉर्म मतलब यहाँ पे देखो ये लेडी क्या कर रही है, ये नीचे नहीं खड़ी हुई है, इसको नीचे खड़े हो मतलब ये नीचे खड़े हो सकती थी, फिर भी इसने एक ऐसा ऊंचा प्लेटफॉर्म लिया है, जैसे कि स्टूल कहते हैं हम उसको, या फिर टेबल पे, ठीक है। वहाँ पे जाके रेज प्लेटफॉर्म पे, थोड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पे जाके ये खड़ी हो गई है, ठीक है। और जो ग्रेन्स है उसके नीचे उसने रखे हैं सारे ग्रेन्स, ठीक है। अब ये कर क्या रही है, उसके हाथ में जो है वो सूप है। यहाँ पे आपको नेम दिया गया है सब पार्ट्स का, ठीक है, 3 पार्ट्स जो है। तो ये सूप है, इस सूप में उसने वो ग्रेन्स रखे हैं, ठीक है। और इसको ये खड़ी कहाँ पे हो गई है, डायरेक्शन ऑफ एयर, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में एयर ज़्यादा है वहाँ पे ये काम कर रही है, क्योंकि विनोइंग एयर से रिलेटेड हो, और हमें एयर जिस डायरेक्शन में है वही जाके हमें ये काम करना होगा, ठीक है। और विदाउट एयर आप विनोइंग प्रोसेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सक्सेसफुली नहीं होंगे, उतनी सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर बी राइट एट अ शोल्डर हाइट। आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेपर या फिर सूप जो है आपके शोल्डर पे लेना होगा, जैसे इस मतलब वुमन ने किया है, लेडीज़ ने किया है यहाँ पे, ठीक है। और उसको क्या करना है फिर, टिल्ट इट स्लाइटली, जो धीरे धीरे से उसको हिलाना है, जैसे कि ये कर रही है, ठीक है। टिल्ट इट स्लाइटली, और सो दैट द mixture slides out slowly। जैसे कि आपको अगर वो टिल्ट करेंगे, आप उसको स्लाइटली हिलाएंगे, तो वो मिक्सचर जो होगा स्लाइड्सली, क्या होगा, स्लाइडली मतलब स्लोली आउट हो जाएगा, उसमें जो हस्क है या फिर स्टोन है वो धीरे धीरे से बाजू में हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स, डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट फॉर द पाउडर्ड लीव्स fall at the same place? Is there any component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? अभी देखो यहाँ पे हमने जो सॉडस्ट जो एक्टिविटी इन्होंने की मतलब हमें दी थी करने के लिए, जैसे कि स्टैंड है, सॉडस्ट है और पाउडर्ड लीव्स है, इसमें से उन्होंने कहा है कि कौन सी चीज़ आप देख सकते हो कि ब्लोज अवे मतलब दूर चली गई है, और कौन सी है जो थोड़ी मतलब साइड में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इम्प्योरिटीज़ गिरेंगी और यहाँ पे एक इम्प्योरिटीज़ गिरेंगी। जो इम्प्योरिटीज़ हल्की है वो दूर जाके गिरेगी थोड़ी, ठीक है। और जो थोड़ी हैवियर है वो यहाँ पे मिलेगी, जैसे कि स्टोन है, यहाँ पे स्टोन थोड़े मतलब नज़दीक मिलेंगे आपको। और जो हस्क है मतलब जो पाउडर है या फिर उसको कहेंगे हम लीव्स है, वो थोड़े दूर जाके गिरेंगे, क्योंकि वो लाइटर है। सो लाइटर है मतलब क्या है, ज़्यादा हेवियर नहीं है, और विनोइंग मतलब एयर की वजह से वो थोड़े दूर जाके गिरेंगे, ठीक है। मतलब इस तरह से आप आपके ग्रेन को भी सेपरेट कर सकते हो हस्क और स्टोन से, ठीक है। सो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। सो इसी मेथड को जहाँ पे हम मतलब क्या करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर सेपरेट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम विनोविंग कहेंगे, ठीक है। सो विनोविंग इज यूज्ड to separate heavier and lighter components of mixture by wind or blowing air। जैसे कि हमें पता है what we used here, we generally used that wind or blowing air means ज़्यादातर जहाँ पे ज़्यादा wind होगी वहाँ पे हम उसको उस blowing air में जाके या फिर wind में जाके हम वो lighter particle या फिर heavier भी particle होंगे तो हम वो winnowing से separate कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने विनोइंग में क्या सीखा अभी। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, दिस मेथड इज सेपरेटिंग मीन्स दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग components of mixture, it is called winnowing। okay, so have you understood that what is winnowing also? सो दिस मेथड इज अभी जनरली मैंने अभी कहा था कि ये मेथड फार्मर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो वुमन है वो भी शायद फार्मर ही है,
ठीक है, क्योंकि वो इतना सारा ग्रेन कर रही है दूर। और जनरली मतलब ज़रूरी नहीं कि फार्मर भी करेंगे, हम फार्मर के जैसे मतलब फार्मर के हाउस से हम या फिर उनके पास से हमारे पास खेती नहीं है तो उनके पास ही हम से गेहूँ या फिर राइस या फिर ग्रेन्स खरीदेंगे ना, तो उनके पास पे खरीदे हुए भी ग्रेन्स जो है वो इसी तरह हमें उसकी इम्प्योरिटीज़ जो है वो सेपरेट करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए भी हमें भी प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब हम फार्मर नहीं हैं फिर भी हम विनोइंग कर रहे हैं। तो ज़्यादातर फार्मर करते हैं या फिर फार्मर छोड़ के हम भी कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बोला भी गया है, दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवियर सीड्स ऑफ द ग्रेन्स, जैसे कि फार्मर्स करते हैं, ठीक है। और द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द वाइंड एंड द सीड्स ऑफ द ग्रेन्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ हिप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग एंड द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पजेस सच एज द फोडर ऑफ कैटल्स। और ये जो मतलब सेपरेटेड हस्क है जो हम मतलब कैटल्स के लिए भी रख सकते हैं, या फिर उसका यूज़ जिस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसके जो यूजेस है उसको हम या मतलब जो हस्क है उसका यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जनरली कौन यूज़ करता है? फार्मर्स बहुत ज़्यादा तरह मतलब वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था। सो स्टूडेंट्स, सो दिस वाज नथिंग बट द विनोइंग प्रोसेस। नाउ हैव यू अंडरस्टूड दैट विनोइंग प्रोसेस? ओके, वेरी गुड। नाउ जस्ट टर्न टुवर्ड्स द सीविंग मैंने आपको पहले ही कीवर्ड्स में बताया था कि आपकी मम्मा इस तरह से क्या करेंगी, रोज़ कुकिंग करते टाइम ये जो उसका कुकिंग का जो ये है स्ट्रेनर, जिसको हम बोलते कि ये सीविंग प्रोसेस की वजह से जो फ्लोवर है वो इस स्टोन से या फिर इस थिंग से नीचे गिर रहा है, और उसमें जो है हस्क है, अभी वो जो ऊपर है इम्प्योरिटीज़ है जो कि हम नहीं खाते, ठीक है। और बिलो क्या गिर रहा है उस इस स्ट्रेनर से, प्योर वीट है, ठीक है, प्योर फ्लोर है वीट का, ठीक है। और ऊपर जो है इम्प्योरिटीज़, वो तो इस तरह से आपकी मम्मा डेली करती होंगी वो, तो आप देख लो, ठीक है। इस प्रोसेस को नथिंग बट द सीविंग कहते हैं, फिर भी हम उसको डिटेल्स में सीखेंगे, ठीक है। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद द फ्लोर, जैसे कि हमें पता है बहुत टाइम पे हम फ्लोर से कुछ डिश बनाते हैं, तो वीट की फ्लोवर ही सेपरेट नहीं करेंगे तो बहुत सारे, जैसे कि बेसन है या फिर राइस फ्लोर है, या फिर केक बनाते टाइम हम बिस्किट भी जो बहुत सारे बिस्किट्स है, केक बनाते टाइम हम उसको पहले मिक्सर से ग्राइंड करते हैं और फिर उसको छानते हैं छाननी से, ठीक है ना। तो मतलब क्या कि एक ही फ्लोर नहीं है वीट फ्लोर, हम बहुत सारे फ्लोर है, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं उसकी इम्प्योरिटीज़ में, या फिर लार्जर पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं स्मॉलर पार्टिकल से, ठीक है। सो वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन दैट। ओके, जैसे कि हमें मालूम है जैसे कि बहुत इम्प्योरिटीज़ रहती है उस फ्लोर में भी, समटाइम्स हमें कुछ कीड़े भी मिल सकते हैं, बहुत अगर पुराना माल है घर में, जैसे कि बेसन जनरली हमें उसमें बहुत दिन का है, या फिर वीट भी है बहुत दिन का है, फ्लोर है किसी चीज़ का, तो उसको हम कुछ इम्प्योरिटीज़ गिर सकती है, कोई स्टोन गिर सकता है कभी जाने अनजाने में, तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, तो इसका यूज़ करके हम सेपरेट कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को हम सीविंग कहेंगे, ठीक है। सो वी यूज़ अ सीव एंड pour द फ्लोर इनटू इट। सो इस चीज़ को हम सीव बोलेंगे, ठीक है। जो सीव का यूज़ करके हम उस मतलब फ्लोर को पोर कर सकते हैं, नीचे पोरिंग हो रहा है, यहाँ पे देखो ये जो लेडीज़ है उसको हिला रही है, टिल्ट कर रही है वो सीव को, तो उस सीव में से नीचे फ्लोर गिर रहा है, ठीक है, जो पोर हो रहा है फ्लोर, जो कि स्मॉलर क्वांटिटीज़ में मतलब फाइन पार्टिकल्स है, ठीक है। सो सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर, जैसे कि हमें फाइन फ्लोर मिल रहा है, बहुत मतलब बारीक फ्लोर जो है उस सीव से हम नीचे निकाल सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स, और इस सीव को छोटे छोटे होल्स रहते हैं, जैसे कि ये सीव मैंने यहाँ पे निकाली, उसको ऐसे छोटे छोटे होल्स रहते हैं। सो ये छोटे होल्स में से ये जो फ्लोर हम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो स्टोन वगैरह यहीं पे रहेंगे, और छोटे छोटे पार्टिकल्स फाइन फ्लोर ही नीचे गिरेगा। इस प्लेट में आप देख सकते हो कैसे गिर रहा है वो,
ठीक है. So are removed from the wheat. So in the flour meal, impurities like a husk and stone are removed from the wheat before grinding it. Usually a bagful of the wheat is poured on the slanting sieves. The sieving removes pieces of stones, stalks, and husks that may still remain with the wheat after threshing or winnowing. जैसे कि हमें पता है यहाँ पे वो कह रहे हैं टू सेपरेट पेबल्स. नाउ सी हियर ऑल्सो, यहाँ पे जो बिगेस्ट है कि हम बिग मटेरियल भी सेविंग का यूज़ करके निकाल सकते हैं. जैसे कि ये व्हीट और फ्लोर की ही नहीं, हम बहुत सारे बड़े मटेरियल्स होंगे जैसे कि पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सैंड बाय सीविंग. जैसे कि सैंड है, सैंड छोटे पार्टिकल्स है, उसमें अगर बहुत बड़ा पार्टिकल जैसे कि पेबल्स मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर कहेंगे या फिर स्टोन कहेंगे, ठीक है, उसको हम सैंड से कैसे सेपरेट कर सकते हैं. इस तरह से जो सीविंग है, यहाँ की सीव है, उस प्रोसेस को ये जो इंसान इस तरह से प्रोसेस कर रहा है, आप देख सकते हो उसको. तो इस तरह से हम उसको सैंड ये नीचे गिर रही है इस सीव से, और जो बिगेस्ट पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो रहे हैं उसके नीचे, ठीक है. जैसे कि घर बनाते टाइम हम देख सकते हैं, ठीक है. उस तरह से वो मिस्त्री जो लोग होते हैं, ये इस तरह की प्रोसेस करते हैं, ठीक है. तो आप ये भी देख सकते हो, आपके डेली लाइफ के सारे एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपके डेली लाइफ में है, ठीक है. वही आपको देखना है और सीखना है, ठीक है. सो here you may have also noticed similar sieves being used at the construction sites. See, construction site में जहाँ की जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि जो मिस्त्री है, जो पीपल है जो घर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ना जनरली. तो उस मतलब कंस्ट्रक्टर है जो, वो जनरली ये काम करते हैं टू सेपरेट द पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड, ठीक है. So have you understood this one? Now for this today, it's okay with winnowing, sieving and threshing. Now in the tomorrow's session, we will complete that next part, that is from activity 4. So what you have to do today? Today you have to remember that all concept, sieving and then winnowing and everything whatever I have taught in this today's session, and how to remember it, okay, so that you will easily, whenever I asked you some questions regarding to how is sieving, give some example, so you have to give that all example that you have find here also and in your daily life also, okay dear students. So for this today it is okay with this, and you have to complete this all task of concept and everything, okay. So and tomorrow we will complete that activity 4 and sedimentation, decantation and filtration process, okay. So thank you, have a nice day.